آئے صاحب کلام پاک کی تلاوت سماعت کرنے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے حوالہ تلاوت کریں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 30واں باب اور اس کی 3 آیت تلاوت کریں گے۔ نئے عہد نامہ میں یہ رقم ہے بک آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 3 تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ رقم ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پلیز یو ہیو اے سیٹ۔ خداوند یسوع مسیح کے بہت بڑے جلالی اور خوبصورت نام میں اب سب لوگوں کو میری طرف سے، بشپ ندیم غوری کی طرف سے اور مشنری چرچز آف کرائسٹ کونسل انٹرنیشنل اور پاکستان کی طرف سے اب سب کو سلام پہنچے، اور خداوند کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو، اور جماعت مل کر کہے کہ اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کی سلامتی ہو، آمین۔ ایسو میرا دل نہایت خوشی اور شادمانی سے بھرا ہے کہ میں اب سب لوگوں کے ساتھ مل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر جو ہوں وہ عبادت کر رہا ہوں اور پرستش کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ جن کو میں پرسنلی ان دنوں میں یہاں پر آ کر نہیں مل سکتا، آپ لوگ مصروف ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت ہے یہ جگہ کہ جہاں پر ہم سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اپنے عزیزوں سے بھی اور اپنے خداوند سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیا ہی یہ خوبصورت مقام، جگہ خدا نے اس زمین پر انسانوں کے ساتھ ملاقات کے لیے اور پھر اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بنا دی ہے۔ یہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ میرے پاس مختصر وقت ہے، صرف 40 منٹ ہے، اسی میں سب کچھ کروں گا۔ یہاں پر آ کر میرا یہ ہابی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ بڑے گھروں کو دیکھا جائے، ان کو وزٹ کیا جائے، اور میں ابھی تک صرف دنیا کے 15 ممالک میں جو ہوں وہی صرف وزٹ کر چکا ہوں، اور اس میں امریکہ بھی انکلوڈنگ ہے۔ یہ دوسرا میرا وزٹ ہے یہاں پر، 2020 میں نے پہلا وزٹ یہاں پر کیا۔ جہاں پر بھی میں جاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑے گھروں کو دیکھ سکوں۔ یہاں پر بھی آ کر میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ بڑے گھروں کو وزٹ کیا جا سکے۔ بڑے گھروں سے مراد ہے جو بڑے فیمس لوگ ہیں، ان کو مجھے اتفاق ہوا ویسٹ پام بیچ میں جانے کا اور پھر میامی بیچ پر جانے کا، اور جب میں نے وہاں پر بیچ میں جو ہے وہ شپ کے ذریعے سفر کیا تو جو شپ کا گائیڈر تھا وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ وہاں پر کتنے فیمس لوگ جو ہیں وہ اس بیچ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور پھر وہ ان گھروں کی مالیت بھی بتاتے کہ یہ گھر اتنے ایکسپینسیو ہیں۔ اور پھر مجھے یہاں کے ایکس پریزیڈنٹ مسٹر کیا نام ہے ان کا، نہیں دوسرے، یہ جو پچھلے تھے اس سے، ٹرمپ، ان کے گھر کے سامنے سے گزرنے کا بھی اتفاق ہوا، بلکہ ایک فوٹو بنانے کی اجازت مل گئی، وہاں پر بھی میں فوٹو بنا سکا۔
लेकिन इन सारे घरों को विजिट करने के बाद अगर कोई घर मुझे अच्छा लगा, जिसने मुझे अच्छे तरीके से वेलकम किया, वो खुदा ही का घर है। हालेलुया। जहां पर हमें इजाजत लेनी नहीं पड़ती है और जहां पर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि खुदा के घर वाला तो अपनी बाहें फैलाए हुए है और सारी दुनिया को ही इनविटेशन दे रहा है कि मेरे घर में आओ। लेकिन जो लोग इस भेद को जान गए, खुदा के घर के बारे में उन्होंने आवाज़ें बुलंद ऐलान भी किया और इकरार भी किया और कहा, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। सो खुदावन का घर बड़ा खुशी का घर है और मैंने इसलिए कहा कि मैं अपने घर में आया हूं। ये मेरे बाप का घर है और हम सब एक बाप की औलाद है। मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। कलाम को शुरू करने से पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपके सीनियर पास्टर, नहायत काबिल एहतराम इज्जतमाब जनाब पास्टर इमैनुअल साहब का, इनके साथ इनके मिसेस का, और फिर पास्टर सफदर साहब का, बहन जी का, और पास्टर अनीता का, भाई शाहिद का, बहन शिबा का भी, भाई रशीद का, भाई शाहिद का भी, भाई राशिद का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और पास्टर सदीक साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। रेवरेंड डॉक्टर अमीन गिल साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। पास्टर रोबन साहब हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस चर्च की सारी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल होता है कई दफा जब आपसे सीनियर लोग बैठे हों और आप कलाम सुनाएं, और मैं समझता हूं कि ये सीनियर्स की जो है वो एक बड़ापन है उनका, कि वो छोटों को मौका देते हैं कि वो उनके सामने जो है वो खुदा उनके कलाम को बयान कर सके। सो मैं बगैर किसी शर्म के ये कहना जरूर चाहूंगा कि इन सीनियर्स की मौजूदगी में मेरा कलाम सुनाना आज फिर से सीखने का ही अमल होगा मेरे लिए। सो मैं चाहूंगा खुदा के इन अजीम खादमों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। मैंने डॉक्टर अमीन साहब से बहुत कुछ सीखा है, पास्टर सदीक साहब से बड़ा कुछ सीखा है, और ये मेरे सीनियर्स हैं और मैं हमेशा इनसे सीखता रहा हूं, और मेरे लिए आज बड़ी ये खुशी की बात है। खुदा उनके कलाम की तरफ आते हैं। जब यहाँ पर जो है वो इस बात की कंफर्मेशन हुई कि मैं इस संडे को जो है वो पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च में जो है वो मुझे जो है वो मौका फराहम किया गया है कि मैं खुदा उनके कलाम को बयान कर सकूं, तो मुझे बताया गया कि आज जो है वो स्पेशल आज जो बैप्टिज्म की सेरेमनी है, और मुझे यही टॉपिक दिया गया कि आप बपतिस्मे के बारे में जो है वो बात कर सकें या इसके बारे में आप लोगों को बता सकें। सो बाइबल मुकद्दस का अगर कोई सबसे लाजमी और जरूरी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मजमून है, तो वो साल्वेशन है, वो नजात है, वो न्यू लाइफ है, वो नई जिंदगी है। खुदा बाप का अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का जो मिशन था, हकीकत में वो साल्वेशन था। वो लोगों को बचाना और लोगों को महफूज करना, सेव करना और अपनी बादशाह का हिस्सेदार बनाना था, मसीह के हम मेरास बनाना था, और इस साल्वेशन के वसीला से अपने खास बेटे और बेटियां बनाना था। इसके अलावा कोई मिशन नहीं था। वो खुदा तो बिफोर जीसस क्राइस्ट वो बथेरे मौजज़ात करता था। मसीह के बगैर भी मौजज़ात के दरिया बहते थे। हाथ लगाए बगैर यरीहो की दीवारें गिर जाती थी, और हाथ लगाए बगैर कुलज़म दो हिस्सों में बट जाते थे। उस वक्त भी लोग जो थे बीमार चंगे किए जाते थे, उस वक्त भी कोढ़ी पाक और साफ किए जाते थे,
उस वक्त भी मुर्दे जिंदा किए जाते थे। तो खुदा तो अपनी कुदरत के बड़े काम पहले से ही कर रहा था। मसीह से पहले ही ये मौजज़ात के दरिया जारी थे, लेकिन जितने पहले आए वो मौजज़ात करते रहे, वो निजात का पैगाम देते रहे, वो लोगों को महफूज होने का दर्स देते रहे, बचाते रहे, बताते रहे, सिखाते रहे। लेकिन किसी को भी इस बात की अथॉरिटी नहीं थी कि कोई इस जमीन पर आए और बनीनो इंसान के लिए कीमत अदा कर सके, उनके गुनाहों की कीमत अदा कर सके, उनका इज्जी बन सके, उनके लिए जो है वो कास्ट पे कर सके, उनके लिए कीमत पे कर सके। मसीह से पहले और मसीह के बाद बथेरों ने गुनाहों की माफी के सर्टिफिकेट दिए और बथेरों ने जो है वो निजात के दावे किए, लेकिन कोई मेरे मसीह से अलावा, मेरे मसीह को छोड़कर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमें खुदा की बादशाहत में शामिल कर सके, कोई हमें मसीह के घर में दाखिल कर सके। यीशु मसीह ही वो वाहिद जरिया है जिसके वसीला से हम खुदा की बादशाहत में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जहान की मुआफी के लिए और महलसी के लिए जो है वो कुर्बानियां चढ़ाई जाती रही, बकरों और बरों और बछड़ों और छकलों के खून बहाए जाते रहे, लेकिन वो कुर्बानियां उनके लिए दायमी कुर्बानियां ना बन सकी, उनके गुनाहों को दायमी तौर पर मुआफ ना कर सकी। लेकिन वह एक ऐसी कुर्बानी जो सलीब पर दी गई, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, जो खुदा के बरे ने अदा की है, वही कुर्बानी दायमी कुर्बानी ठहरी है। उससे पहले की कुर्बानियां ना गुनाहों को मुआफ सकी, थोड़े वक्त के लिए गुनाहों को ढांप सकती थी, लेकिन गुनाहों को मिटा नहीं सकती थी। गुनाहों को अगर कोई मिटाने के लायक कुर्बानी हुई है तो वो यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है, वो सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है। लोगों ने अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए, पाक और साफ करने के लिए, खुदा की कुर्बत, खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए और बिलखसूस खुदा का बेटा बनने के लिए बहुत सारे जराए इस्तेमाल किए जो खुदा ने बताए थे कि तुम इन 10 अहकामात पर अमल करना। जी हाँ, वो 10 अहकामात उनको बचाते रहे, लेकिन अगर कोई अपनी जिंदगी दे सका तो वो यीशु मसीह की कुर्बानी थी, वो यीशु मसीह का लहू था, वो यीशु मसीह का खून था। बहुत सारे लोग मसीह की कुर्बानी से पहले और आज भी एक बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी में चंद बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े चर्च हैं जो बैप्टिज्म के हवाला से कुछ अलग जो है वो तालीम रखते हैं। और मैं इस टॉपिक को जो हूं वो बिल्कुल छेड़ना नहीं चाह रहा कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। मैं एक्चुअल में इसलिए यहां पर खड़ा हूं कि मैं वो कहूं जो खुदा का कलाम कहता है, मैं वो बताऊं जो खुदा का कलाम बयान करता है। सो यहां पर एक शख्स, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग इस एहसास को लेने के लिए, इस इस्तेकाम को हासिल करने के लिए, इस अपनी जिंदगी को लेने के लिए, इस नई जिंदगी को लेने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते रहे, अपनी अपनी अच्छी जिंदगी पर भरोसा करते रहे, ईमानदार जिंदगी पर भरोसा करते रहे। मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी है, मेरी जिंदगी बड़ी पाक है, मेरी जिंदगी बड़ी नेक है, मेरी जिंदगी बड़ी दुआगो है, मैं बहुत अच्छा जो हूं वो उस्ताद हूं, मैं रूहानी हूं, बस अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सो आज का भी जो हवाला तलावत किया गया यूहन्ना की उसके 3 बाब की 30वीं आयत जो हमने तलावत की, वहां पर यीशु मसीह एक शख्स के साथ जो है वो बात करता है, जो रात की तारीकी में यीशु मसीह के पास आता है, और उस शख्स का नाम निकोदीमस है। और बताया जाता है, कलाम बताता है कि वो उस वक्त
जो था वो उस्ताद था और पढ़ाता था, और इन चीजों को छोड़कर बस इस बात को समझ लीजिएगा कि वो एक नेक शख्स था, वो एक अच्छा शख्स था, वो लोगों को अच्छा सिखाने वाला था, अच्छी राह बताने वाला था और एक नेक और पाक जिंदगी बसर करता था। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह से इसने बात की, तो यीशु मसीह ने सिर्फ उससे एक ही कलाम किया। यीशु मसीह ने सिर्फ उससे एक ही बात की कि तेरे अमाल चाहे कितने ही क्यों अच्छे नहीं है, तेरी दुआएं, तेरी नमाज, तेरा मुतालिया, तेरी स्टडी, तेरी वर्शिप, जी हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तेरी नजात तेरी जाती पाकीज़गी में नहीं है, तेरी जाती रियासत में नहीं है। और बहुत दफा मैंने कहा कि हम अपने आप को बड़ा दुआओं के वसीला से नेक बना लेते हैं, समझते हम चर्च जाते हैं, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये शख्स जो है ये खुदा के बड़ा करीब है, ये शख्स आम शख्स नहीं है, ये तौरात का और सहाबा अंबिया का उस्ताद है, इसके पास हर तरह की तालीम है, लेकिन अभी तक ये इस भेद को नहीं समझ पाया कि मैं कैसे नई जिंदगी को हासिल कर सकूं। सो यीशु मसीह ने इससे कहा कि निकोदेमस, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता है। दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात, वो देख भी नहीं सकता है। सो जैसे यीशु ने इससे बात की तो उसने फौरी तौर पर जो है वो यीशु मसीह से मुखातब हुआ, एक मुकालमा चला, डायलॉग चले, और यीशु मसीह से उसने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है कि जब कोई शख्स बूढ़ा हो गया क्यों कर अपनी मां के पेट में जाए और दोबारा से पैदा हो। सो नई पैदाइश की बात है, जैसे नई पैदाइश की बात हुई तो उसने समझा कि दोबारा से मुझे मां के पेट में जाना होगा, कोई दोबारा से जन्म लेना होगा, तो फिर मैं नई जिंदगी को हासिल कर सकूंगा। जी नहीं, जन्म एक ही था, लेकिन उसी जन्म में उसे दूसरी बार पैदा होना था, उसको दोबारा जो है वो पैदाइश हासिल करनी थी, जिसको नई जिंदगी, नई पैदाइश कहा गया है। किसी शख्स ने कहा है जो कोई इस जिंदगी में 2 दफा पैदा होता है वो 1 दफा मरेगा, और जो कोई 1 दफा पैदा होता है वो 2 दफा मरेगा। सो बड़ा जरूरी है कि नई पैदाइश का अपनी जिंदगी में तजर्बा रखना। सो पहली बात याद फरमा लीजिएगा, अगर हम बपतिस्मा याफ्ता है तो थैंक्स लॉर्ड, अगर नहीं है तो एक बात को याद रखिएगा, कई दफा कई दफा ना बैप्टिज्म को बड़ा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया इसको। पता नहीं हम समझते हैं कि बपतिस्मा है क्या, इसमें बड़ी उलझने पैदा कर दी गई हैं कि नहीं जी बपतिस्मा ही लगवाना कितना जरूरी होगा। फिर इसके ऊपर बड़े सारे सवालात हैं, क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, ये बड़े सवालात हैं। और फिर ये सवालात है बपतिस्मा किसके नाम से लेना चाहिए। ये बपतिस्मे को बड़ा मुश्किल कर दिया गया है, लेकिन जबकि बपतिस्मा कोई मुश्किल इतना टॉपिक नहीं है, ये वेरी इजी, वेरी सिंपल है। सो यीशु मसीह ने वाज़े कर दिया, वाज़े तौर पर कह दिया, आपकी रास्तबाजी एक तरफ, आपके अच्छे काम एक तरफ, आपकी दुआएं, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हदिये, आपकी दयकी एक तरफ। क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी ही रास्तबाजी से रास्तबाज ठहरता तो फिर यीशु को सलीब पर कुर्बान होने की जरूरत ना पड़ती। बहुत सारे लोगों ने रुपए पैसे लेकर जो है वो मुआफी के सर्टिफिकेट जारी किए हैं, लेकिन याद रखिए रुपया पैसा हमें मुआफी नहीं दिला सकता, ये सर्टिफिकेट हमें मुआफी नहीं दिला सकते। सो पहली बात याद रखिएगा, हम जिंदगी के जिस हिस्सा में भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम चर्च आते हैं, थैंक्स लॉर्ड, खुदा ने हमें अपने पास आने का मौका दिया, और ये इसलिए मौका दिया है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, ताकि हम दोबारा से पैदा हो जाएं। सो हम जिंदगी के किसी हिस्सा में भी हैं, अगर हमने
मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, खुदावंद का शुक्र। अगर नहीं किया तो फिर आज लम्हा फिक्रिया है कि ये शख्स जिसका नाम निकोदीमस है बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है, खुदा पर खुदा तरस है, खुदा की प्रस्तिश करने वाला, इबादत करने वाला, मुनादी करने वाला, लोगों को खुदा की राह बताने वाला, लेकिन तो भी यस्सु ने उससे कहा कि निकोदीमस तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, इसलिए कि तेरी ये बातें तुझे बचा नहीं सकती हैं। और यीशु मसीह ने ये कहा, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी तो गंदी धज्जियों की मानिद है। हम अपने आप को रास्तबाज नहीं बना सकते और ना रास्तबाज ठहरा सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि बपतिस्मा किन को लेना चाहिए, बपतिस्मा किन को लेना चाहिए। सो नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा कि बस जो कोई तौबा करे और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। सो वेरी सिंपल। अगर हम अपनी जिंदगी में ये समझ जाएं कि मैं अपने आप में बहुत सारी कमजोरियों से लदा हुआ हूं, भरा हुआ हूं, खताकार हूं, मुझसे खता हो जाती है, मुझसे गुनाह हो जाता है, तो फिर सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि बपतिस्मा गुनाहों की मुआफी के लिए एक रूहानी अमल है। नंबर 2 कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। ये बात वेरी क्लियर है कि जब तक किसी को इस बात का इल्म नहीं होता है कि मैं खताकार हूं, तब तक वो बपतिस्मा नहीं ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि तौबा का ताल्लुक जो है वो मैच्योरिटी के साथ है, वो बालगी के साथ है। जब आप खरे और खोटे में इम्तियाज कर सके, आप तारीकी और रोशनी में वाज़ेह फर्क आपको महसूस हो सके। एक बच्चा है और उसको अभी कुछ पता नहीं है कि झूठ क्या है, उसको नहीं पता है। बच्चे लोगों के घरों में जाते हैं और शायद बताए बगैर कुछ चीज वहां से लेकर आ जाते हैं जिसको हम चोरी कहते हैं। बच्चे को नहीं पता कि चोरी क्या है, बच्चे को नहीं पता कि गाली क्या है, बच्चे को नहीं पता कि धोखा फ्रॉड क्या है, बच्चे को रियाकारी, मकारी, चालाकी और लड़ाई झगड़े ये नहीं मालूम है कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि बपतिस्मे का ताल्लुक जो है वो तौबा के साथ है। किसके साथ है? तौबा के साथ है। और तौबा का ताल्लुक जो है वो मैच्योरिटी के साथ है। किसके साथ है तौबा का ताल्लुक? मैच्योरिटी के साथ है। और कई दफा तो हम तौबा ही करते रहते हैं, मिर्चा भी थोड़ी ज्यादा लग जाते फिर भी तौबा करते रहते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, क़यामत नुमा कोई वाकया हो जाए, तो भी हम तौबा करते रहते हैं। और अक्सर गिरजा घर में आकर भी तौबा करते रहते हैं। तौबा का ताल्लुक मैच्योरिटी से है, ये याद रखिएगा। जब आप बालग हो जाते हैं, खरे खोटे में पहचान करना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं नहीं ये झूठ है, ये गुनाह है, ये ठीक चीज नहीं है। बपतिस्मे का ताल्लुक तौबा के साथ है, तौबा का ताल्लुक मैच्योरिटी के साथ है। और फिर इससे अगली बात कि बपतिस्मा ही क्यों लेना चाहिए। वैसे भी तो ये हमारा डाढ़ा ईमान है, पक्का ईमान है कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मुआ है और उसकी कुर्बानी के वसीला से हम पाक हो गए हैं। अब बपतिस्मा हम क्यों ले? इसकी भी बड़ी सादा तशरीह जो है वो पतरस ने अपने खत में की है। पतरस के पहले खत को हम देखेंगे। पतरस का पहला खत उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत में जरूर जो है वो पढ़ना चाहूंगा। पतरस का खत, पहला खत उसका 3रा बाब 21वीं आयत जो है वो हमें बताती है कि जो लोग कहते हैं कि बपतिस्मा ही क्यों लेना है, जब मैंने गुनाहों की मुआफी मांगी है बपतिस्मा ही क्यों लेना है। इसके बारे में हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्या है। पतरस का पहला खत 3रे बाब की 21वीं आयत में लिखी है, बल्कि हम 18वीं आयत से ये पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए
गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। सो पतरस ने बड़ा सादा बता दिया। किताब मुकद्दस में लिखा है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हमारा ये ईमान है कि मसीह मेरे लिए सलीब पर मुआ, मरा, दफन हुआ और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हमारा ये ईमान है कि मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ, दफन हुआ और जी उठा है। लेकिन किताब मुकद्दस कहती है, बताती है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। ये हमारा ईमान है। लेकिन अपने ईमान को कामिल करने के लिए पतरस यहां पर कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में उतरते हैं, उतरकर बाहर आते हैं, तो हम हकीकत में ये ऐलान कर रहे होते हैं और हकीकत में हम ईमान के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ईमान के साथ अमल कर रहे हैं कि पहले मसीह मेरे लिए सलीब पर मुआ, मेरे लिए दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह अब मैं मसीह की कुर्बानी पर ईमान रखता हूं कि हकीकत में मसीह अपने लिए नहीं मुआ था, बल्कि वो गुनाहगारों के लिए मुआ था। मसीह गुनाहगारों की नजात के लिए मुआ था, वो गुनाहगारों की साल्वेशन के लिए मुआ था, और वो इसलिए मुआ था ताकि उसके लोग जो गुनाह की वजह से मर चुके हैं, मर रहे हैं, मरेंगे, इस नजात कुर्बानी के वसीला से अपनी जिंदगी पा जाए। और वो इसलिए मुआ था, वो इसलिए मुआ था, वो तो जिंदगी का सरचश्मा था, वो तो अपने आप में जिंदगी रखने वाला था, वो तो जिंदगी बांटने वाला, बल्कि उसमें से तो जिंदगी बहती थी। और जब कभी मुर्दों के वो पास आया तो मुर्दे भी उसके सामने जी उठे। हालेलुया। लेकिन वो मुआ इसलिए कि हम जो गुनाह के सबब से मरते हैं, अब उसकी मौत के वसीला से जिंदा हो जाएं। हालेलुया। तो हम बपतिस्मा के वसीला से, इस अमल के वसीला से हम ईमान का इजहार अमलन तौर पर करते हैं कि मसीह मेरे लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। इससे आसान तशरीह कोई दुनिया में नहीं हो सकती है कि मसीह मुआ, दफन हुआ और जी उठा। जिस तरह मसीह मुआ, दफन हुआ और जी उठा, इसी तरह मैं इस पानी में उतरकर मर जाता हूं, अपने गुनाहों से मैं मर जाता हूं। जिस तरह मसीह मेरे लिए मुआ, अब मैं इस पानी में मरता हूं और मसीह की तरह दफन होता हूं, और जिस तरह मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, इसी तरह मैं नई पैदाइश का तजर्बा पाता हूं। हालेलुया। इससे आसान सादी तशरीह दुनिया में हो नहीं सकती है कि बस बपतिस्मे का मतलब ही यही है कि मसीह को पहन लेना और मसीह पर ईमान रखने के साथ अमल करना। इसमें कोई पेचीदगी वाली बात ही नहीं है। 2 बातें मैंने आपसे की, 3 की है कि बपतिस्मे का ताल्लुक तौबा के साथ है, बपतिस्मे का ताल्लुक तौबा के साथ है, और तौबा का ताल्लुक मैच्योरिटी के साथ है, और ईमान का ताल्लुक अमल के साथ है। और जब हम ये ईमान ले आते हैं कि मसीह हुआ, हम अमल कर देते हैं, तो हम नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। अब इसके बाद
एक नया काम शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है ये बड़ा जरूरी है। और कई दफा तो भाइयों ने सिर्फ ना, मैं भी भाइया खुदावंद का शुक्र है बपतिस्मे मैं भी देता हूं, लेकिन कई दफा सिर्फ हम भी जो है वो बपतिस्मे अंदर सिर्फ जो है ना वो स्टैंप ही करने हैं। इससे आगे हकीकत में काम तो आगे शुरू होता है, सिस्टम तो आगे शुरू होता है। अब नई पैदाइश हो चुकी है, अब काम तो आगे है। नई पैदाइश है, इसका मतलब है कि नई सोचें, नए ख्याल, नई राहें, नए रास्ते। तौबा का एक्चुअल में मतलब ये है रुख मोड़ लेना, डायरेक्शन चेंज कर लेना। अब जिस राह पे है, जिस हिम्मत में है, उसको तब्दील कर लेना। तौबा का ये मतलब है। रहना हमने इस दुनिया में ही है, लेकिन याद रखिएगा मैं और आप मुबारक है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील गालबन उसके 70वें बाब में मेरे लिए और आपके लिए दुआ की है। उसने कहा मैं तो जा रहा हूं मगर ये दुनिया में है और इस दुनिया में इनकी हिफाजत करना। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दुआएं की हैं, और जिनके लिए यीशु ने दुआएं की हैं वो लोग बड़े अजीम लोग हैं। हालेलुया। लेकिन जानने की ये जरूरत है, अपने आप पर ये अप्लाई करने की जरूरत है। क्या मैं मसीह की दुआ में शामिल हूं? क्या वो दुआ मेरे लिए है? अब देखते हैं जी, बड़े बड़े लोग, मुझे मालूम है कि ये चर्च पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च यहां पर एक बड़ा चर्च है और तादाद में भी मैं देख रहा हूं बड़ा है, और मैंने रूह के तौर पर भी महसूस किया कि ये रूह में भी मैच्योर लोग हैं। हालेलुया। अपने चर्च के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सो ऐसा होता है कि कई दफा हम बड़े बड़े लोगों की दुआओं के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं। आपके मंच पर, यहाँ पर सॉरी आपके चर्च में जो है मैंने देखा है कि बड़े बड़े अजीम खादम आए हैं। सबसे पहले आपके पास्टर बड़े अजीम हैं, बड़े अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत चर्च है और इतने ज्यादा खिदमत का फल इनके पास है। और मुझे मालूम है कि हमारे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के बड़े काबिल एहतराम उस्ताद, बड़ा नाम आली जनाब डॉक्टर लियाकत कैसर साहब पिछले दिनों में आपके पास यहाँ पर थे। इसके सरोज साहब यहाँ पर आते रहे, और फिर डॉक्टर नीतू पी चौधरी साहिबा यहाँ पर आती रही, और दुनिया में सीधा और बड़े बड़े अजीम लोग हैं। और जैसे ही कई दफा हम इनसे मिलते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि ये हमारे लिए दुआ करें। तसी जिथे मर्जी आ जाइए, साड़ी यह चीज नहीं बदल दी। महीना हो गया मैंने इतने हजे भी भाई साहब मेरे हाथ रख के दुआ करो। क्यों नहीं भाई साहब? जितनी देर तक हाथ नहीं ना रखना काम नहीं चला। क्यों नहीं भाई साहब? लेकिन ऐसा नहीं है। हम बड़े बड़े लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए दुआ करें, खुदा के अजीम खादमों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन क्या ही अजीम बात है कि जिस बड़े खादम ने आपकी दुआ यीशु से करनी है, वो यीशु पहले से आपके लिए दुआ कर रहा है। और कितनी अजीम बात है जिसकी बात को ना बाप टालेगा, ना कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है। और यूहन्ना की अंजील जरूर पढ़िएगा, उसका 17वां बाप यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उसमें दुआ की है। सो मैंने कहा पैदाइश के बाद सिस्टम शुरू होता है। अगर कोई बच्चा माँ के पेट में हो तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी दुआएं की जाती हैं। लेकिन जब बच्चा की पैदाइश हो जाती है, उसकी विलादत हो जाती है, एक्चुअल खुशी तो तब होती है कि वो कैसा होता है, कैसी जिंदगी बसर करता है, कैसा चाल चलन है, कैसा रवैया है। अब जो लोग बपतिस्मा लेंगे, अब उनके लिए चंद और जरूरी बातें कि बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मे का मतलब क्या है। अब उससे, और जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, पहले से वो बैप्टाइज है, अब चंद बातें उनके लिए भी हम जरूर करेंगे। कुछ बातों को हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, बड़ा जरूरी है। बाइबल तो हमारे पास है, और कई लोग बताते हैं जी हमने जिंदगी में 10 दफा बाइबल जो है वो पढ़ दी। भाई एक दफा पढ़ दी तो काफी है, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे ये आपको उतनी बार ब्लेस करेगी। हालेलुया। और अगर आप पहले से बैप्टाइज हैं तो आज दोबारा से हम एक बार फिर से बैप्टिज्म के बारे में देखेंगे। सो यहां पर पतरस के खत में जो हमने पढ़ा था, पतरस का खत, पहला पतरस का खत उसके 3 बाब की जो है वो 21वीं आयत में यूं लिखा था, और उसी 21वीं आयत में, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं है। बड़ा सादा। बपतिस्मे
का मतलब जिस्म की नजासत का दूर करना नहीं है। ये जिस्म की नजासत दूर नहीं करता। हर रोज ही नहाते, पूल में नहाते, दरियाओं में नहाते, समंदरों में नहाते हैं। यही बपतिस्मा क्यों हम समझते हैं कि इसने हमें पाक कर दिया है। इसकी अमल एक्चुअल में कुछ और रूहानी अमल है जो हमें पाक करता है। लेकिन कई दफा हम ये समझते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम क्या हो गए हैं, पाक हो गए। इससे लिखा इससे जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं। दोबारा से कह गया, इससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। बपतिस्मे का मतलब, बपतिस्मे का मकसद, बपतिस्मे के मीनिंग जो है वो खालिस दिल से, प्योर हार्ट से खुदा के साथ रिश्ता जोड़ना है, खुदा के साथ बंधन बांधना है, खुदा के साथ एका करना है, खुदा को देखना है, खुदा के साथ चलना है, उसमें समा जाना है और उसको अपनी जिंदगी में ले लेना है। बपतिस्मे का मतलब खालिस दिल से। कई दफा आज जो दुनिया में सबसे बड़ा इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, वो यही है, ये दिल जो है उसके साथ खालिस नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम इज दिस एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज नहीं, पहले वक्तों की भी बात है, दुनिया बिलीवर कम है, एक्टर बड़ी है। आज एक्टिंग ज्यादा है, चर्चिस में, मिनिस्ट्रीज में, घरों में, रिश्तेदारों में। हम वो कुछ दिखाना चाहते हैं जो शायद हम है नहीं है। लेकिन खुदा को अगर किसी चीज से वास्ता है नई पैदाइश के बाद, तो वो दिल का खालिस होना है। दिल का क्या होना है? खालिस होना है। और खुदा याद रखिएगा, कभी भी चेहरों पर नजर नहीं करता है, खुदा दिल पर नजर करता है। ये प्रॉब्लम तो यीशु मसीह को उस जमाने में भी रही थी। अब मत्ती के इंजील उसके 23वें बाब को पढ़ लीजिएगा। एक बरमला यीशु मसीह ने ऐलान किया और शिकवा किया है, रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि अपने रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए करते हो। मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं, मैं गैर जुबान में बोलता हूं, ते नाल पता नहीं और केड़ी भी जुबान बोलते मैं वो नहीं दसी। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं दसनी। लेकिन हमने बताना है कि हम रूह कुदस याफ्ता हैं, हम अनॉइंटेड हैं, हम नजात याफ्ता हैं, हमारी अच्छी खिदमत, हमारी अच्छी सर्विसेज। खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा मेरे पास वक्त थोड़ा, बस जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करने लगा। यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर वहां पर कहा, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम क्या हो? सफेदी फिरी हुई कब्रें। एक्चुअल में वो उन लोगों को कह रहा था, हम लोगों को नहीं था कह रहा। ये बताइए, ये बात याद रखिएगा। आम लोगों से तो उसने बरगला कह दिया, तू 5 कर चुकी है, जिसके पास अब है वो भी तेरा नहीं है। आम लोगों से तो उसने वाज़ेह स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया। आम लोगों से उसने कह दिया, जा तेरे गुनाह मुआफ हुए चूंकि तू है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को रास्तबाज समझते थे, सादे लफ्जों में कह रहे, जिन्होंने सादे लफ्जों में ये कह रहे, जो अपने आप को ईमानदार जानते थे, बड़े नेक समझते थे, चुंगा समझते थे, लोगों के ऊपर अपना रूहानी इंपैक्ट रखना चाहते थे, लोगों को रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर ब्लैकमेल करते रखते थे, जो लोगों को बड़े बड़े लंबे चौगे पहनकर बताकर, मैं भी होते पाना पाकिस्तान क्योंकि मैं पेशावर, लोगों को अपनी तरफ मुतासर करते हैं, लोग हमारी तरफ देखें, मुतासर हो, इंप्रेस हो और हमारी रिस्पेक्ट करो। यीशु मसीह ने कहा, तुम यही तो चाहते हो,
कि लोग तुम्हें सलाम करें, लोग तुम्हें सलाम करें, तुम्हारी रास्तबाजी का ढिंढोरा पीटे, तुम्हें अच्छा कहे, चंगा कहे, भला कहे, नेक कहे, पाक कहे, साधु कहे, भगत कहे, आपको बड़े खुदा दे अजीम खादम। सॉरी टू से, मैं यहां पर किसी भी खादम के लिए ये नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं कलीसियाई तौर पर यह बात कर रहा हूं जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं। हम सब कलीसिया हैं, ये याद रखिएगा। और लिखा वो जो 7 कलीसियाओं में फिरता है वो कलीसियाओं से बात करता है, और मुबारक है वो लोग जिनसे खुदा बात करता है। और यहां पर नरसिंगा बजाया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मकाशवा की किताब में लिखा, और वो नरसिंगे की आवाज में अपने लोगों से बातें करता है। और खुदा यीशु मसीह को उस वक्त ये प्रॉब्लम था कि लोग हकीकत में जो कुछ थे वो नहीं शो करते थे, कुछ और शो करते थे, अपनी नेकियां बताते थे जबकि नेक नहीं थे। तो यीशु मसीह ने कहा तुम क्या हो? सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, इसलिए कि जैसा तुम नजर आते हो वैसे है नहीं। यीशु मसीह और खुदा, मैंने फिर से आपको का शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि उसको कोई गर्ज नहीं है कि मेरा चेहरा कितना ठीक है, उससे वो कोई गर्ज नहीं है। उसके हुजूर में काले चिट्टे की एक जैसी वैल्यू है, उसको कोई गर्ज नहीं है। हाँ, अगर उसको किसी चीज में गर्ज है तो वो दिल की प्योरिटी में है, दिल की सच्चाई में है, और वो दिलों पर नजर करता है, वो दिलों को देखता है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमें बताना नहीं पड़ता है जब हमारा दिल उसके साथ खालिस हो, जब हमारा मिजाज उसके साथ खालिस हो, तो हमें अपनी जबानों से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। और मुबारक हैं वही लोग जिनकी लोग तारीफ करे या ना करे, आसमानों का खुदा उनकी तारीफ करे। हालेलुया, याद रखिएगा। और आए इस बात की तरफ बपतिस्मा लेने के बाद अपनी जिंदगी में रखे कि मेरा खुदा मेरी तारीफ करे। यीशु मसीह लिखा जब पानी से बाहर आया, बपतिस्मा लेकर बाहर आया, रुनकुदुस कबूतर की मानिद उसकी जिंदगी पर नाजिल हुआ, और साथ ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। और जिससे वो खुश होता है, उसकी मोहब्बत, उसकी पाकीज़गी, उसका पाक दिल वो हिडन नहीं रखता है। याद रखिएगा, हम कई दफा कईयों की तारीफ करने के लिए खामोश रहते हैं, साडा हौसला नहीं पैदा की तारीफ कर रहे थे। ऐसा ही है कि नहीं? हम देख रहे हैं न्यू लाइफ चर्च बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लाइव लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना। ये इंसानी फितरत है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारी जिंदगियां अच्छी चल रही हैं, खुदा देख रहा है, वो लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा और अनाउंसमेंट भी देगा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और खुदा दिल पर नजर करता है। एक वाकया भाई साहब, सिर्फ मुझे 2-4 मिनट चाहिए। एक वाकया, हकीकी वाकया जो मुझे बड़ा पसंद है, और मैं कोशिश करता हूं कि काश ऐसा शर्फ मुझे हासिल हो जाए। किताब मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत वाकया उसके बारे में, क्या है उसका, फिलिप्पस नहीं, तू मुझे कहां से जानता है, क्या नाम है शख्स का? नथानिएल। यस, नथानिएल। लिखा है शागिर्द यीशु के पास आए और नातनेल के पास, नथानिएल के पास आकर कहने लगे, मैं तुझे यीशु से मिलाऊं। और उसने कहा हमें ख्रिस्तिस मिल गया है। सो नातनेल जो है वो कुछ और कहता है, और नातनेल चल पड़ा है ख्रिस्तुस से मिलने को। भाई साहब, चल पड़ा है, और अभी नतानिएल पास नहीं आया है,
और यीशु मसीह उसके बारे में कुछ कह रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है। ये फील हकीकत इस्राएली है। अभी वो पास नहीं आया, बात नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं चला, लेकिन यीशु ने कहा कि ये फील हकीकत इस्राएली है। वाई ही रियल इज़राइल। आगे सफाई भी बयान कर दी, बता भी दिया कि ये क्यों सच्चा इस्राएली है, क्योंकि इसमें, कहिए, मैंने बता दिया क्या है, फिलिंग्स द ब्लैंक्स। करिए, इसको फिल कीजिएगा। ये सच्चा इस्राएली है क्योंकि इसमें मक्कर नहीं है, जो कुट कुट के पर याद है, फिर मैं कह रहा। ये सच्चा इस्राएली क्यों है? क्योंकि इसमें मक्कर नहीं है। वो जो इस्राएली होने का फख्र करते थे, वो जो इस्राएली होने का दावा करते थे, वो जो लोगों को इंप्रेस करते थे, यीशु ने उनको सच्चा इस्राएली नहीं कहा, बल्कि उनको कहा कि तुम क्या हो? रियाकार हो, मक्कार हो। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है कि यीशु ने क्या कहा कि ये क्या है? सच्चा इस्राएली है क्योंकि इसमें मक्कर नहीं है। और जब नतनेल ने ये सुना कि यीशु ये कहता है, तो उसने फौरन कहा, तू मुझे कहां से जानता है? तू मुझे कहां से जानता है? दिस इज फर्स्ट जो है वो फेलोशिप है, ये पहली मुलाकात है। और मुझे तो किसी ने बताया कि तुझे मिलाऊं, ख्रिस्ती समय मिल गया है। तू मुझे कहां से जानता है कि मैं खालिस हूं? उसने कहा, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। हम दिखाते हैं यहां पर लोगों को, काश के कोठरी में यीशु हमें देखे। हालेलुया। ये अंजीर के दरख्त के बारे में किसी खुदा के खादम से मैंने बात सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग आज मजहबों पर खुदा को दिखाना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुदा कहीं और आपको देखना चाहता है। बपतिस्मे के बाद, आफ्टर अ बैप्टिज्म, खुदा आपको किसी और जगह पर देखना चाहता है जहां पर आप प्योर हो जाए। हमारी दुआएं यहां पर होती हैं ते घरां च गैर ज़ुबानां होंदियां ने। हमारे रवैये यहां पर आजिज़ हैं, हलीम है, फरोतन है। इससे बाहर हमारे रवैये कुछ और हैं। और बपतिस्मे से मुराद खालिस नीयत से खुदा के ताल्लुक होना है। और जब हम खालिस नीयत से खुदा के ताबे हो जाएंगे तो वो आसमानों से आवाज देगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं नजात याफ्ता हुआ, नहीं जरूरत पड़ेगी मैं दुआ गो हुआ, नहीं जरूरत पड़ेगी मैं नेक और पाक, नहीं जरूरत पड़ेगी। आप कहीं पर भी होंगे वो दूर से ऐलान करेगा कि ये फी अल हकीकत इज़राइली है। उसने कहा कहां से जानता है? उसने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था। किसी ने कहा कि ये अंजीर का दरख्त एक्चुअल में इसकी बंद कोठरी थी, जहां पर ये जाता दुनिया से अलग रहता, दुनिया की भीड़ से अलग रहता, दुनिया के मामलात से अलग रहता, और अंजीर के दरख्त के नीचे मिसल्ला डालकर अपने खुदा के हुजूर में झुका रहता और उसकी हुजूरी में दुआएं, इबादत, रियाजत, प्रस्तिश करता रहता, जहां पर लोग उसे नहीं देखते बल्कि सिर्फ उसका खुदा उसे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। सुहाए मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद ऐसे मिजाज बनाए कि लोग तो हमें अच्छा कहें ही कहें, लेकिन इसके साथ हमारा खुदा हमें अच्छा कहे। हमारे मिजाज अच्छे हो, हमारा चाल चलन अच्छा हो, हमारा रवैया अच्छा हो, और हकीकत में लोग देखें कि ये नहीं
पैदाइश का तजर्बा रखने वाले हैं, क्योंकि अब इनकी जिंदगी नहीं है, इनकी सोचें नहीं है, इनके ख्याल नहीं है, इनकी राहें नहीं है। ये अपनी पुरानी जिंदगी से हट चुके हैं, इन्होंने तौबा कर ली है, पहली बातों से तौबा कर ली है। अब ये नए मखलूक बन चुके हैं, नए मखलूक, नई बातें, नई सोचें, नए ख्याल, नई राहें, नए रास्ते। आए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, बल्कि मैं चाहूंगा आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब बीइंग ऑफ ह्यूमन, हम ऐसा गिरते रहते हैं। हम ये बातें, ये आईना जो हमने खुदावंद के कलाम का देखा है, शायद अगर कहीं पर हमें कुछ नजर आया है तो आज दोबारा से फिर मेरे लिए और आपके लिए ये वक्त है कि हम देखें कि मैं कहां पर हूं। क्या सिर्फ लोगों से मेरे लिए कमेंट्स आ रहे हैं कि या कभी खुदा ने भी मेरे लिए कमेंट पास किया है? आफ्टर बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद मेरा जिंदगी कैसी है, रवैया कैसा है? क्या मैं वाकई अपने चर्च के साथ खालस हूं, अपने पादरी साहब के खालस हूं, खुदा के साथ खालस हूं, अपने रिश्तों के साथ खालस हूं, अपनी बीवी के साथ खालस हूं, अपने शोहर के साथ खालस हूं, अपने बच्चों के साथ खालस हूं? हालेलुया। ये सिर्फ मेडिटेशन का वक्त है। देखिएगा हम कहां पर हैं। हालेलुया। आंखें बंद कीजिएगा, अपने सर डाउन कीजिएगा, सिर्फ सोचने का वक्त है ताकि हम दोबारा से नए हो जाएं, हालेलुया, खालिस हो जाएं। खुदा ने हमें यह मौका दिया आज की सुबह। भेड़ को जो खो गई, ये वक्त है अपने आप को ढूंढने का, अपने आप से बात करने का। मैं कहां पर हूं? बंद हो गई, मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी कहीं पर रुक गए हैं, फंस चुके हैं, आज दोबारा से खुदा आपको आजाद करना चाहता है। उसके घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वो मुस्लिम बेटों को मुआफ करने के लिए तैयार है, अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। दुनिया की हालेलुया। अगर आपकी मोहब्बत खुदा के साथ ठंडी पड़ चुकी है तो दोबारा से आगे चल के आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत हो जाए, कामों की वजह से, नौकरी की वजह से, और दुनिया की मसरूफियात की वजह से, और बहुत सारे मामलात की वजह से। लेकिन आज सुबह आपको बहाल करना चाहता है, आपकी मोहब्बत को अपने साथ बहाल करना चाहता है। देखना मुझे और आपको है, मैं और आप कहां पर हैं। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के हालेलुया। जाल में था जो फंसा, गुनाहों में था अब तलक। आए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, कोई किसी की तरफ ना देखिए, अपने खुदा को देखे जो आपका कफारा है, आपका खुदा जो आपसे प्यार करने वाला है, जो सब कुछ भूल कर अच्छे बाप की तरह मुस्लिम बेटों को गले लगा लेता है। हालेलुया। सिर्फ वो कह रहा है लौटा मेरे बेटे, मेरी बेटी लौटा। ये वक्त जो खुदा ने हमें दिया है, आए सब
हम में से कोई भी यहाँ पर रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। हमें हर रोज उसकी मदद को लेने की जरूरत है। उसके साथ चलने के लिए भी हमें उसके फजल की जरूरत है, और पाक और रास्तबाज होने के लिए भी उसी की पाकीज़गी की जरूरत है। और उसने ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी रास्तबाजी में तुम्हें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है। अब कहीं पर भी है, कैसे भी है, किसी हालत में भी है, ये कलाम किया ही उसने इसलिए है ताकि वो हमें आज एक बार फिर से रास्तबाजी अता फरमा दे। हालेलुया। मेहरबान आसमानी पिता, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावंद तू बार 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 हमसे कलाम करता है ताकि हम तुझसे दूर होकर कहीं मौत में ना चले जाएं, जिस मौत से तूने हमें बचाया है, निकाला है और जिंदगी के वारिस बनाया है। ओ खुदावंद फजल दे के हम जिंदगी में कायम रहें। खुदा, नई पैदाइश जो हम हासिल कर चुके हैं या करने वाले हैं, ओ खुदा हम इस नई जिंदगी में खालिस दिल से तेरे ताबे हो जाएं। खुदा, हमारे मिजाज बदल दे खुदावंद। अगर हम अपने आप को बदलना भी चाहें तो बदल नहीं सकते, लेकिन तूने रूह कुदुस हमें बख्शा है ताकि रूह कुदुस के वसीला से हम बदन की रग़बतों, जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ सके। खुदा, ओ खुदा रूह कुदुस आ और कब्जा करना शुरू कर। खुदा, सोचों पर तेरा कब्जा, ख्यालों पर तेरा कब्जा, दिलों पर तेरा कब्जा। वो भेड़ें जो किसी वजह से कहीं फंस चुकी है, रूह कुदुस के वसीला से, रूह कुदुस के जोर को उनके लिए जारी करते हैं। खुदा, ओ खुदा रूह कुदुस जा और बंद दरवाजों को पतरस की तरह तोड़ डाल। खुदा, बेड़ियों को तोड़ डाल। खुदा, तेरे लोग आजाद हो जाए इन रस्सियों से, इन बातों से, इन रवैयों से, इस मिजाज से तेरे लोग आजाद हो जाए। खुदा, और कलाम की आग तेरे कलाम की तरह हमें खालिस कर दे। खुदा, अपने कलाम से गुस्ल देकर हमें एक बार फिर से पाक कर दे। हमारे बातन तेरे लिए पाक हो जाए। खुदा, हमारे दिल तेरे लिए पाक हो जाए, हमारी जिंदगियां तेरे लिए पाक हो जाए। खुदा, सिर्फ तू यही तो चाहता है कि जिस तरह तू पाक है तेरे लोग भी पाक हों। खुदा, हमें अपनी पाकीज़गी दे। खुदा, अपनी पाकीज़गी दे। खुदा, इन जानों को बहाल कर। खुदा, खुदा जिनसे तूने कलाम किया मैं नहीं जानता, लेकिन तूने कलाम इसीलिए किया है क्योंकि तूने उनकी जरूरत को पूरा किया है। खुदा, अब वो कलाम जिंदगियों में सरायत कर जाए। खुदा, मैं तेरी हुजूरी में तेरे दिल की तड़प और लालसा के साथ ये दुआ करता हूं कि वो बेटे जो मुसरफ मनहरफ हो चुके हैं वो लौट आए। खुदावंद, उनकी मोहब्बत तुझसे दोबारा हो जाए। खुदा, इसलिए कि तूने मकाशवा की किताब में कहा कि देख तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ओ खुदावंद रहम कर, फजल कर। तेरे रहम, फजल और मेहरबानी की हमें जरूरत है। खुदा, बस तेरा रहम हमेशा मुकद्दसों के साथ अब से अब्दुल्लाबाद होता रहे। खुदा, ताकि हम तुझ में कायम रहे। खुदा, तुझ में बने रहे। खुदावंद, और तेरे आने तक हम तेरे साथ वफादार रहे ताकि अपनी जिंदगी को हासिल कर सके। तेरा शुक्र हो। हाज़िर जमायत में अगर कोई बीमार भी है वो तेरे कलाम की कुदरत के नज़ूल से चंगा हो जाए। खुदा, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लिसन एवरी डिजीज, every sickness and every evil spirits, we command you, come out in the name of Jesus. निकलो यीशु मसीह के नाम से। हम शिफा को बोलते हैं, आजादी को बोलते हैं, रिहाई को बोलते हैं। खुदा, छुटकारे को बोलते हैं। खुदा, खुदा हम पास्टर इमैनुएल साहिब के लिए
पास्टर सफदर साहब के लिए, पास्टर अनीता के लिए, इनकी सारी मैनेजमेंट के लिए भी खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं। पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च और ज्यादा तेरे लिए फल पैदा करे खुदा, तेरे लिए रूहों को जीते, जानों को जीते खुदा। खुदा ये चर्च तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे खुदा। और तेरे कलाम में लिखा, और मेरे बाप का जलाल इसी में है, तुम बहुत सारा फल लाओ खुदा। खुदा ये चर्च पहले से भी तेरे जलाल का सबब है, और ज्यादा अपने जलाल का बायस बना खुदा। इस कलीसिया को, इन खानदानों को बरकत दे खुदा। जो लोग यहां पर खुदावन अपने डॉक्यूमेंट्स की मुश्किलात में है खुदा, आज के दिन वो भी दुआ करते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर खुदा, आसानियां पैदा कर खुदा, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा खुदा, अपनी डिवाइन फेवर उनके लिए जारी कर खुदा। तेरा शुक्र हो जो अपने खानदानों से जुदा यहां पर हैं खुदा, उनके खानदानों को पाकिस्तान में भी बरकत दे खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा। हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, कलीसिया जलावाली के लिए भी दुआ करते हैं जो तेरे नाम से सताए गए हैं, और हम ये जानते हैं कि जलाल का रूह पाकिस्तान पर है खुदा। हम पाकिस्तान को भी तेरे लिए मांगते हैं खुदा, वहां पर काम करने वाले लोगों को भी खुदा हम तेरी मदद के लिए खुदा उनके लिए तेरी मदद जारी करते हैं। हम तेरे बेटे इस्राएल के लिए भी दुआ करते हैं जो हालत जंग में है खुदा। ओ खुदा फतह से भरकर हम करार कर खुदा अपने बेटे को, तेरा शुक्र, उसकी जान माल सरहदों की इज्जत आबरू की, सबसे बढ़कर ईमान की हिफाजत कर खुदा। ये दुआ तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए जो कभी मिटने वाला है उसके लिए जोरदार ताली।